Good morning, dear students. As we have started chapter first of history, bricks, beats, and bones. So far, what we have discussed, we have started that the Harappan scene is the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization. Artifacts are those objects which have been used by the early humans. जो अर्ली ह्यूमंस थे या जो अर्ली सिविलाइजेशन के लोग थे उनके द्वारा जिन भी चीज़ों को यूज़ किया गया है, वेदर दे आर टूल्स, वेट्स, एनीथिंग, every object that has been used by the early humans is considered an artifact. तो जो seal है, the Harappan seal is the most distinctive artifact of the Harappan or Indus Valley civilization. The seal is made of stone called steatite. It has animal motifs and a signs from a script that remain undeciphered still. जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो अभी भी अनडेसिफाइड. Yet we know a great deal about the lives of the people who live in the region from what they left behind. Still हम बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में. How we know about them? By the things they have left behind. उनके पीछे जो चीज़ें रह गई हैं, जो चीज़ें हमें मिली हैं एक्सकवेशन के थ्रू, by those things we have know very much about them, like their houses, foods, ornaments, tools, and seals. In other words, we can say archaeological evidence. Because I have already told you that in history there are two evidence to recreate a particular period, which are literary sources and archaeological sources. Because in the case of Harappan civilization, the script is still undeciphered. We have no literary sources. We have to rely on only archaeological sources. And what are those archaeological sources, or what are those archaeological evidences? Are houses, forts, ornaments, tools, and seals. Then we have seen that the terms, places, and time. The second topic which we have seen is the terms, places, and time. These are some tools, these are some artifacts. We can say these are some artifacts of Harappan people, like blades, cubical shaped weights, and beads. By visualizing these beads of cubical shape, we can understand one thing, that the Indus Valley people has a knowledge of weighting system, और they have generated a weighting system. उनके पास में जो है एक weighting system था जिसके अंदर वो weight जो है उसको यूज़ करते थे. Still there is not mention anything on these weights, but they are in different shape, they are in different weights, like smaller, bigger, and then bigger. अलग अलग साइज में है ये. These are some beads of Harappan civilization, of what we have been found from the different places. Then these are some places related to the mature Harappan sites. There, like if we see the Harappan civilization has started around 2600 BC. The civilization has started around 2600 BC and at 1900 BC. But in that particular period, the period between 2600 to 1900 is known as the mature Harappan period. The Harappan civilization could be divided into three periods: early Harappan, mature Harappan, and late Harappan. जो मैच्योर हड़प्पन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो है वो इस मैप में आप देख सकते हैं. मोहनजोदारो, चनूदरो, गनेरीवाला, कालीबंगा, हरप्पा, धोलावीरा. दीज आर सम साइट्स. नाउ इफ़ वी सी एट द सेकंड मैप, अगर हम सेकंड मैप की बात करेंगे, यहाँ पे ये मैप 1.1 है, अगर हम सेकंड मैप देखेंगे, मैप 2 देखेंगे, तो हमारे माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मेन कई सारी जो यहाँ पे साइट्स जो हम इंडस वैली की देख रहे हैं, मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स देख रहे हैं, दे आर लोकेटेड, ये उस जगह पे जो है लोकेटेड या उस जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे अर्ली हड़प्पन कल्चर जो है वो सिचुएटेड था. लाइक सीन दिस मैप, इस मैप पे देखिए, इस मैप में आप देखेंगे तो देखिए कोट दीजिए इंडस वैली के आसपास के एरियाज में देखिए एक अर्ली सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था इंडस वैली और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास के एरियाज में. अगर हम देखेंगे तो एक सिविलाइजेशन जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था. दैट सिविलाइजेशन जो है उसको हम अर्ली हड़प्पन जो है उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, एरियाज ऑफ अर्ली हड़प्पन. इस अर्ली हड़प्पन में आप देखेंगे इंडस के ये साइट्स हैं और इसके जस्ट पहले वाला मैप में हम देखिए, यहाँ देखिए आप कोट दीजिए, उसके आसपास के एरियाज में देखिए सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, यानी जहाँ पे अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप था उन्हीं प्लेसेस पर बाद में मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो है वो भी इस्टेब्लिश होता है. उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट हमारा था बिगनिंग्स.
सो फार वी हैव सीन कि जो हरप्पन कल्चर है इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, मैच्योर हरप्पन, लेट हरप्पन एंड अर्ली हरप्पन। जो अर्ली हरप्पन साइड से वहीं पे मैच्योर हरप्पन जो है वो भी इस्टेब्लिश हुआ था। जो अर्ली हरप्पन साइट्स थी वहीं पर ही हमारी मैच्योर हरप्पन साइट्स जो है वो डेवलप होती है। बिगिनिंग फर्स्ट टॉपिक हमारा, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हरप्पन। जो मैच्योर हरप्पन था इसी के रीजन में और भी बहुत सारे जो हैं आर्कियोलॉजिकल कल्चर जो है वो यहाँ पर डेवलप थे। हम ऑलरेडी कल्चर की जो डेफिनेशन है वो देख चुके हैं कि व्हाट डज द आर्कियोलॉजिस्ट मीन बाय कल्चर, कल्चर जो है उससे क्या मीन करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ दीज कल्चर्स वर एसोसिएट विद डिस्टिंक्टिव पोट्री। ये जो कल्चर्स थी एसोसिएट आपस में जुड़े हुए थे, किससे? डिस्टिंक्टिव पोट्री से, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टलिज्म। कुछ क्राफ्ट जो है सेटलमेंट वो भी हमारे को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इट अपीयर्स दैट देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हरप्पन एंड द हरप्पन सिविलाइजेशन। जो अर्ली हरप्पन और हरप्पन था उसके बीच में ब्रेक जो है उसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? इन साइट्स को देखने के बाद। देन द सेकेंड टॉपिक विच वी हैव सीन इज subsistence strategies. If you look at map 1 and map 2, you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the early Harappan culture. जो अर्ली हरप्पन कल्चर है उसके द्वारा जिन एरियाज़ को ऑक्यूपाई किया गया था उन्हीं एक एरियाज़ पे जो हमारा मैच्योर हरप्पन कल्चर है वो भी डेवलप होता है। दीज कल्चर्स ऑल्सो शेयर सर्टेन कॉमन एलिमेंट। ये जो दोनों कल्चर्स थे यानी अर्ली हरप्पन और मैच्योर हरप्पन, इनके अंदर कुछ जो सर्टेन जो है कुछ कॉमन एलिमेंट्स हुआ करते थे। उन कॉमन एलिमेंट्स की हम बात करें तो उसके अंदर एक चीज़ क्या शामिल होती है? हमारी सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी। कॉमन एलिमेंट है बिटवीन अर्ली हरप्पन एंड द मैच्योर हरप्पन। These cultures have a certain common element including subsistence strategy. Subsistence strategy जो है उसको इंक्लूड करते हुए इनके अंदर जो कॉमन जो है ये था। उसके बाद हम बात करें तो द हरप्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एलिमेंट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। जो हरप्पन्स है उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस की बात करें हम तो डाइटरी प्रैक्टिसेस के अंदर उनके देखिए शामिल था एक वाइड रेंज ऑफ प्लांट, एनिमल प्रोडक्ट्स और फिश। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ से व्हाट आर द डाइटरी हैबिट्स ऑफ हरप्पन्स। हरप्पन्स जो है उनकी डाइटरी हैबिट्स में क्या चीज़ें शामिल हैं? तो हरप्पन्स की डाइटरी हैबिट में शामिल है देखिए हरप्पन्स एट a wide range of plant and animal products including fish. Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from finds of charred grain. जो वहाँ से ग्रेन्स मिले हमारे को, जो अनाज के दाने मिले, उनकी मदद से आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट करने में कामयाब रहे हैं कि क्या डाइटरी प्रैक्टिसेस थी हरप्पन पीपल की। तो उसके थ्रू उन्होंने ये पता लगाया। These are studied by archaeobotanists who are specialists in ancient plant remains grains found at Harappan site. ये जो आर्कियोबोटनिस्ट थे ये स्पेशलिस्ट थे अपने फील्ड में एंशियंट प्लांट रिमेन्स के बारे में जानने में। इन्होंने जो हरप्पन साइट्स पे जो इनको चार्ड ग्रेन्स मिले हैं या जो सीड्स मिले हैं उनकी मदद से क्या पता लगाया कि हरप्पन्स जो है उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस में कौन कौन से प्लांट शामिल थे, कौन से एनिमल शामिल थे, ये उन्होंने देखिए पता लगाया। तो क्या क्या चीज़ें शामिल, अगर हम बात करें इनकी देखिए डाइटरी हैबिट में शामिल चीज़ों में देखिए आता है हमारे सामने wheat, barley and lentil. Wheat, barley, lentil, chickpea and sesame. These are widely spread dietary practices. ये जो है आपको हर जगह पर हरप्पन साइट में मिल जाता है। मिलेट्स आर ओनली फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात। गुजरात में जो धोलावीरा, लोथल जो जगह थी सिर्फ वहाँ से जो है हमें मिलेट्स जो है मोटा अनाज जवार बाजरा जो है उसके एविडेंसेस मिले हैं। एंड फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। राइस जो है वो बहुत कम मिला है रिलेटिवली हमें, और मिला है वो कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश वाले एरियाज़ में। नाउ एनिमल बोन्स फाउंडेड हरप्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गॉट, बफेलो एंड पिग। जो एनिमल बोन्स मिली है हमें हरप्पन साइट्स पे उसमें कौन कौन से एनिमल शामिल है देखिए, कैटल, शीप, गॉट, बफेलो एंड पिग। रिमेंबर वन थिंग, वीट, बार्ले, लैंटिल, चिकपे एंड सीसमे ये वाइडली स्प्रेड थे। सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन कुड बी लाइक दिस दैट विच फूड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डाइटरी हैबिट ऑफ हड़प्पन पीपल्स। हड़प्पन पीपल्स जो है उनकी डाइटरी हैबिट का कौन सा फूड पार्ट नहीं है। तो यू हैव टू नो दैट द क्रॉप वीट, बार्ले, लैंटिल, चिकपे ये जो है सिर्फ यही वो फूड ग्रेन्स थे जो ये लोग प्रोड्यूस करते थे, कल्टिवेट करते थे। नाउ एनिमल बोन्स की बात करें तो एनिमल बोन्स में हमारे सामने आता है देखिए कैटल, शीप, गॉट एंड बफेलो।
कैटल, शीप, गॉट एंड बफेलो जो हैं, कैटल, शीप, गॉट, बफेलो एंड पिग, ये वो एनिमल्स थे जो हरप्पन पीपल ने इन्हें या तो डोमेस्टिकेट किया हो या इन्हें हंट किया हो, वेदर एनी को पॉसिबली कुड बी देयर, बट हरप्पन जो है वो इनके बारे में फैमिलियर थे और ये उनकी फूड हैबिट्स में शामिल थे, फूड हैबिट में शामिल थे कैटल, शीप, गॉट, बफेलो एंड पिग। वेदर कैटल जो है हमारा उसको उन्होंने मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए रखा हो, बाकी एनिमल्स को जो है उन्होंने अदर प्रोडक्ट्स के लिए जो है रखा हो, बट ये उन एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पेसीज सच एज बोर, डियर एंड घड़ियाल आर आल्सो फाउंड। देखिए सीधा क्वेश्चन बन सकता है दैट विच एनिमल्स बोन्स आर फाउंड एट हरप्पन साइट्स, हरप्पन साइट्स पे कौन कौन से एनिमल्स की बोन मिली है, तो वी हैव टू रिमेंबर कैटल, शीप, बफेलो, पिग। कैटल, शीप, गॉट, बफेलो, पिग, ये 5 जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। और फिर वाइल्ड एनिमल्स में हम बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स में वी हैव बोर, डियर एंड घड़ियाल। बोर, डियर एंड घड़ियाल जो है ये वाइल्ड एनिमल्स थे हमारे पास में। और इसके अलावा बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। बोन ऑफ फिश एंड फाउल, फाउल जो एक बर्ड है उसकी और फिश की बोन्स भी यहाँ पे मिली है। नाउ द नेक्स्ट थिंग वाज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। हमने देखी सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज की बात की, उसमें हमने देखा दैट हरप्पन्स आर नोन अबाउट द वीट, बार्ले, मेज एंड ऑल दैट, वो उनके बारे में जानते थे। तो उन्होंने उनका कल्टीवेशन कैसे किया होगा, यानी वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी सीड्स में इनका आखिर कल्टीवेशन कैसे किया होगा, व्हाट मेथड दे हैव अप्लाइड टू कल्टीवेट दीज थिंग्स, उसी की हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट वन इज अवर व्हाई द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन। जो प्रेवलेंस एग्रीकल्चर का ये किससे इंडिकेट होता है, ये इंडिकेट होता है बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन। जो ग्रेन्स जो मिला है हमें यहाँ से उसकी फाइंड से ये क्लियर हो जाती है कि दे हैव नो दैट एग्रीकल्चर जो है वो एग्जिस्ट करता था। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। डिफिकल्ट क्या चीज़ है, डिफिकल्ट इज रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उनको रिकंस्ट्रक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है। क्यों है ऐसा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव टू रिले ऑन ओनली द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, देयर इज नो एविडेंस रिटन ऑन दैट थिंग। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अजम्पशन वी कैन मेक, जो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को जो आर्टिफैक्ट्स मिले उनसे कौन कौन से अजम्पशंस अगर हम लगा सकते हैं। तो अजम्पशंस की हम बात करें तो देखिए बर्ड शीट्स ब्रॉडकास्ट ऑन प्लॉट लैंड, यानी कि भाई जो एग्रीकल्चर है उसके लिए उन्होंने कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए होंगे। तो पहला मेथड देखिए कि क्या उन्होंने एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसको पहले प्लो यानी हल चला के उसकी जुताई की हो। देन दे हैव स्कैटर्ड द सीड्स, उसके बाद में उन्होंने सीड्स जो है वो स्कैटर्ड किए हों। ऐसा ये अजम्पशन क्यों किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, व्हाई डज दे मेक दिस अजम्पशन दैट दे हैव स्कैटर्ड द सीड्स ऑन अ प्लॉट लैंड। प्लॉट लैंड के ऊपर जो है उन्होंने जो सीड्स है उनको स्कैटर किया होगा, ये आइडिया क्यों लगाया आर्कियोलॉजिस्ट ने। They have made this assumption because representation on seals and terracotta sculptures that the bull was non and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for plowing। क्यों ये चीज़ आइडिया आया उनके माइंड में कि खेतों की जुताई की होगी, प्लोइंग की होगी, क्योंकि representation on seals and terracotta sculpture of bull, ये बुल, इस बुल का जो टेराकोटा स्कल्पचर है वो सील्स पे भी बना हुआ है। हमने देखा अभी फिगर, इससे पहले सील के सील पर भी जो है फिगर बना हुआ है इसका। साथ ही साथ में टेराकोटा स्कल्पचर जो मिला है यानी मिट्टी की जो मूर्ति मिली है इसी बुल की, वो ये शो करता है। उससे आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ये एजम्पशन लगाया है दैट ऑक्सीन वर यूज फॉर प्लोइंग। ऑक्सीन जो बैल है उसकी मदद ली जाती थी प्लोइंग के लिए, खेतों की जुताई करने में। मोreover टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड बनावली। साथ में जो टेराकोटा मॉडल है प्लो के, वो कहाँ से मिले हैं हमें, चोलिस्तान और बनावली हरियाणा से। बनावली हरियाणा और चोलिस्तान इन दो जगह से हमें प्लो के भी टेराकोटा मॉडल्स मिले। इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है, देखिए दो वो लोग बुल के बारे में जानते थे, वो लोग प्लो के बारे में जानते थे। बुल और प्लो मीन्स दे हैव फर्स्ट प्लोड द फील्ड देन दे हैव स्कैटर्ड द सीड्स, क्योंकि बुल और प्लो दोनों के बारे। अब नाउ थर्ड थिंग वी हैव गॉट आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लोड फील्ड एट कालीबंगा राजस्थान। राजस्थान के अंदर हरियाणा हनुमानगढ़ के पास में कालीबंगा नाम से जो हरप्पन साइट है वहाँ पे प्लोड फील्ड जो है
उसके एविडेंस मिले हैं। इससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली प्रूव हो जाती है कि दैट हरप्पन्स हैव अ वाइड नॉलेज ऑफ प्लॉइंग, दे आर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर बाय दिस मेथड, कि पहले प्लो कर रहे हैं खेत को, उसके बाद में सीड्स को उसके ऊपर स्कैटर कर रहे हैं। इस मेथड को वो वाइडली जानते थे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। इस पैराग्राफ में देखिए क्या चीज़ें याद रखनी है आपको। डायरेक्ट एमसीक्यूज क्या बनते हैं यहाँ से। पहला देखिए एमसीक्यू बनता है टेराकोटा मॉडल ऑफ टू हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ बनावली, यानी कौन सी जगह पे टेराकोटा के मॉडल्स मिले हैं। तो टेराकोटा के मॉडल्स मिले हैं बनावली हरियाणा में। किसके? प्लो के। टेराकोटा प्लो मिला है हमें बनावली हरियाणा में। प्लोड फील्ड के एविडेंस मिले हैं हमें कालीबंगा राजस्थान में। क्लियर रखिएगा इस चीज़ को माइंड में। अब यहाँ पे जो फील्ड मिला है हमें, देखिए कालीबंगा राजस्थान में जो फील्ड मिला है ना, इस फील्ड से एक और जो है थ्योरी वो सजेस्ट होती है। द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फ्यूरोज। फ्यूरोज का मीन्स होता है जब दो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जो है राइट एंगल पे क्रॉस करती हुई जो है फ्यूरोज बनाई जाए, लाइनें बनाई जाए जो कि एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही है, उनको कहा जाता है फ्यूरोज। आपने एग्रीकल्चरल फील्ड देखे होंगे, इस तरीके की दो लाइन होती है, इस तरीके की मिट्टी की ऐसी लाइनें बनी होती है राइट एंगल पे एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करती हुई। इन फ्यूरोज में तो अलग अलग मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो की जाती है, तो अलग अलग तरीके की क्रॉपिंग जो है वो की जाती है। इसके भी एविडेंसेस जो है वो यहाँ पे मिले, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ये भी प्रूव करने में कामयाब रहे हैं कि टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। दो डिफरेंट क्रॉप जो है वो साथ में ग्रो की जाती थी। इसके भी एविडेंस हमें मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने कुछ ऐसे टूल्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जो हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल को काटने के लिए। डिड द हरप्पन यूज स्टोन ब्लेड सेट एंड द वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज मेटल टूल्स? हरप्पन जो है वो स्टोन ब्लेड्स को यूज़ करते थे जो कि वुडन हैंडल्स में लगे हुए थे, या फिर मेटल टूल्स को यूज़ करते थे। ये आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए देखिए आगे बात करेंगे। मोस्ट हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड। अधिकतर जो इंडस साइट्स अगर आप देखेंगे मैप के थ्रू, हमने अभी देखा था कहाँ लोकेटेड थी अधिकतर साइट्स। दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए आप अगर देखेंगे इस मैप को गौर से, आपको थोड़ा सा भी जोग्राफिकल नॉलेज है तो आप समझ सकते हैं अच्छे से कि जो हरप्पन साइट्स ये कहाँ पे है, सेमी एरिड रीजन में। ये वाला हिस्सा हमारा पूरा आप देखेंगे, ये जो पूरा बेल्ट है यहाँ पे कालीबंगा से देखिए इस तरह पूरा बेल्ट है। ये बेल्ट है हमारा कौन सा? थार डेजर्ट का बेल्ट है पूरा का पूरा। ये बेल्ट इस तरीके से थार डेजर्ट हमारी अरावली माउंटेन रेंज जो है वो इस तरीके से जा रही है यहाँ पे कालीबंगा के इस तरफ का पूरा हिस्सा, जिसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल जो है वो काफ़ी लो होता है। इस सेमी एरिड रीजन में, इस सेमी एरिड रीजन में इस जो सिविलाइजेशन है ये डेवलप होता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल रही होगी ये हम नेक्स्ट बात करेंगे। Most Harappan sites are located in semi-arid land where irrigation was probably required for agriculture. अधिकतर जो हरप्पन साइट्स है वो कहाँ लोकेटेड है? सेमी एरिड लैंड्स में, जहाँ पे इरिगेशन जो है वो रिक्वायर्ड थी एग्रीकल्चर के लिए। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हरप्पन साइट ऑफ शॉर्टगुई इन अफगानिस्तान। जो हरप्पन साइट है शॉर्टगुई अफगानिस्तान में, वहाँ पे ट्रेसेस मिले हैं कैनाल्स के। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज़ को। डायरेक्ट क्वेश्चन, द ट्रेसेस ऑफ कैनाल, जो कैनाल्स के ट्रेसेस है वो कहाँ पे मिले हैं, कौन सी जगह पे मिले हैं? वो मिले हैं अफगानिस्तान के अंदर शॉर्टगुई में। Traces of canals have been found at the Harappan site of Shortgui in Afghanistan, but not in Punjab और सिंध। पंजाब और सिंध के अंदर जो है इसके हमें नहीं मिलते हैं। It is possible that ancient canals silted up long ago। इसका कारण क्या है? देखो शॉर्टगुई के अंदर हमें मिले लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शॉर्टगुई वाले कैनाल्स के बारे में जानते थे और पंजाब वाले ना जानते हो। Why does we doesn't find? पॉसिबल क्या है? कैनाल्स सिल्टेड अप लॉन्ग एगो। सिल्टेड अप का मीन्स कि जो कैनाल्स हैं इनके अंदर जो वाटर फ्लो करता था वो अपने साथ में मिट्टी बहा के लेके आता होगा। उन मिट्टी की वजह से जो है वो भर चुकी होगी कैनाल्स। इस वजह से हमें कैनाल्स के एविडेंस यहाँ पे नहीं मिले हैं। और हमें कहाँ से मिले हैं? सिर्फ और सिर्फ शॉर्टगुई अफगानिस्तान से, याद रखिएगा। नाउ इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल वॉज यूज फॉर इरीगेशन। जो वाटर है जो कुओं से निकाला जाता था उसको भी यूज़ किया जाता था इरीगेशन के लिए। बिसाइड्स वाटर रिजर्वर्स भी बनाए गए थे। वाटर रिजर्वर्स जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, बारिश का पानी रोकने का, वो भी वाटर रिजर्वर्स भी बनाए गए थे। जैसे धोलावीरा गुजरात के अंदर हम देख सकते हैं, जो वाटर जो है एग्रीकल्चर के लिए उसको स्टोर करने के लिए बनाया गया था।
आगे हम बात करें, देखिए दीज आर सम टूल्स ऑफ मेड बाय कॉपर, कॉपर से जो है बने हुए कुछ टूल्स हैं। उसके नीचे जो इमेज है हमारा वो है रिजर्वर एट धोलावीरा। जो धोलावीरा के अंदर जो रिजर्वर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी क्राफ्टिंग के साथ में बनाया गया है इसको। देखिए जो इसका जो फर्श है उसको एकदम मजबूत किया गया है साइडों में, ताकि पानी जो है वो आके इकट्ठा हो सके उसके अंदर। यानी हम जो बात कर रहे हैं वाटर रिजर्वर की, वो भी यहाँ पे बनाया हुआ है। आप मशीनरी वर्क जो है उसको नोट कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए दीवारें बनाई हुई सारी की सारी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए हम बात कर रहे हैं हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाई। जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे किया गया था अर्ली ह्यूमंस के द्वारा। प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। जो फूड है उसको प्रोसेस करने के लिए ग्राइंडिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ में उसकी मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और कुकिंग के लिए भी जो है वेसल्स की ज़रूरत होती है। दीज वर मेड ऑफ स्टोन, मेटल एंड टेराकोटा। ये जो आइटम्स है जिनसे कि फूड जो है उसको ग्राइंड करना हो या उसको ब्लेंड करना हो, कुक करना हो, मिक्स करना हो, तो उसके लिए जो टूल्स चाहिए थे या जो रिक्वायरमेंट थी वो किसके बने हुए थे? देखिए स्टोन के थे, मेटल के थे, टेराकोटा के। यहाँ पे हम एक एक्सपर्ट की बात करेंगे जो कि अर्लीस्ट रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो मोहनजोदाड़ो जो बेस्ट नोन साइट है, उस मोहनजोदाड़ो पे अर्नेस्ट मेके जो है, अर्नेस्ट मेके की जो रिपोर्ट है मोहनजोदाड़ो पे 1937 में, उसका ये छोटा सा पार्ट है। दिस वन इज अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम द अर्नेस्ट मेके's रिपोर्ट फर्दर एक्सप्लोरेशन एट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो पे जो फर्दर एक्सप्लोरेशन नाम से जो रिपोर्ट है अर्नेस्ट मेके की, उसका एक छोटा सा पार्ट ही कैसे जो है ये लोग, किस तरीके से ये लोग आइडेंटिफाई करते थे किसी आर्टिफैक्ट को कि उसका क्या यूज़ रहा होगा। तो देखते हैं, शटल क्वेंस आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर। शटल क्वेंस जो है ये काफ़ी कंसिडरेबल नंबर में जो है यहाँ पे मिली है। व्हाट आर दे? एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीनिंग यूज फॉर ग्राइंडिंग सैरल्स। शटल क्वेंस जो है इनको सिर्फ और सिर्फ सैरल्स जो है उनको ग्राइंड करने में यूज़ किया जाएगा। एज अ रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन एंड मोस्टली शो साइंस ऑफ हार्ड यूजेस। ये जो है रफली देखिए किसकी बनी हुई थी? इग्नियस रॉक्स की या सैंडस्टोन की, काफ़ी हार्ड और ग्रिटी होती थी। एज देयर बेसिस आर यूजुअली कॉन्वेक्स दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ और इन मड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग। इनको जो है मड जो है या फिर अर्थ के अंदर जो है फिक्स कर दिया जाता था ताकि ये जो है इधर दूसरे के मूव ना करे। टू मेन टाइप ऑफ हैव बीन फाउंड। दो जो है यहाँ पे देखिए मेन टाइप के जो है मिले हैं हमें सैडल क्वेंस। दोज ऑन विच अनदर टू स्मॉल स्टोन वॉज पुश्ड और रोल्ड टू एंड फ्रो एंड अदर्स विच a second stone was used as a pounder evenly making a large cavity in the nether stone। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिगर में बताता हूँ क्या चीज़ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसकी, ये है हमारा सैडल क्वेन। सैडल क्वेन को सिंपल से शब्दों में आप समझे तो देखिए, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में आपसे बात करूँ तो जो मिर्ची या इनको पीसने का जो ट्रेडिशनल तरीका था, उस ट्रेडिशनल तरीके में एक पत्थर जो है उसके ऊपर रख के उन सामानों को, मसालों को, और उसको पीसा जाता था। वही चीज़ है हमारी सैडल क्वेन, जिसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश की है अर्नेस्ट मेके ने कि भाई उन्होंने क्या देखा इसके बारे में। उन्होंने देखा कि इसको ज़मीन में फिक्स किया गया था, कॉन्वेक्स एंगल में थी। आप देख सकते हैं ये जो है कॉन्वेक्स एंगल बनी हुई है इस तरीके से। इस पर एक स्टोन जो है उसको टू एंड फ्रो आगे पीछे जो है करके इसके ऊपर यूज़ किया जाता था इसको। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट हमारा आता है देखिए मोहनजोदारो प्लान अर्बन सेंटर। मोहनजोदारो जो कि एक प्लान अर्बन सेंटर है, उसके बारे में हम बात करें तो मोहनजोदारो जो है इट हैज़ अ वेरी गुड टाउन प्लानिंग सिस्टम। टाउन प्लानिंग जो है वो काफ़ी अच्छी थी मोहनजोदारो की। रोड्स आर वाइडली मेड विद पेव्ड रोड्स। पेव्ड रोड्स बने हुए थे, काफ़ी वाइड थे। रोड्स आर कटिंग एट राइट एंगल पे एक दूसरे को कट कर रही थी सड़कें, जैसा हमने लास्ट ईयर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पढ़ा है। नैरो वाइंडिंग रोड्स जो हमें उर सिटी में मिली, वैसा ना हो कि यहाँ पे रोड्स जो है वो काफ़ी वाइड रोड्स थी, पेव्ड थी और राइट एंगल पे एक दूसरे को कट कर रही थी, जो कि बेटर जो है यहाँ टाउन प्लानिंग को शो करता है। साथ ही साथ में द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी बेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इसी मोहनजोदारो के बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कुड आस्क मी।